بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ مقدس، چوتھی صلیبی جنگ کی المناک داستان، ایپیسوڈ نمبر 11۔ وہ کتابچے چونکہ یہاں سے لکھ کر بھجوائے جاتے تھے، لہذا لنگڑے راہب کے روپ میں تور نتائی نے یہاں کا رخ کیا، اور یہاں آ کر مجھے معلوم ہوا کہ اس نے یہاں کے اسقف اور چند پادریوں کے علاوہ آپ کے بیٹے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس پادری کے اس انکشاف پر برالون تھوڑی دیر تک بڑی سوچ و بچار میں غرق رہا، پھر اس نے اپنی گردن سیدھی کی اور پادری کو مخاطب کیا۔ میرے بیٹے کے علاوہ بلفورڈ کے اسقف اور پادریوں کو قتل کرنے والا اگر سلطان رکن الدین کا سالار اول تور نتائی تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی حماقت اور بے وقوفی پر تعصب کرنا چاہیے۔ افسوس، ہمارے بیٹے کا قاتل ہمارے سامنے تھا اور ہم اس سے انتقام نہ لے سکے، اور وہ ہمارے یہاں ہی قیام کر کے ہمارے اسقف اور پادریوں کا کام تمام کرتا رہا، اور ہم اس کی کارگزاری پر اپنی خوشی اور اطمینان کا اظہار کرتے رہے۔ ان سارے انکشافات کے بعد خوش روح برنس کی حالت نفرتوں کے الاؤ کی طرح ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ اچانک بول پڑی، اگر وہ لنگڑا راہب حقیقت میں مصر کے سلطان رکن الدین کے لشکریوں کا سالار اول ہے، اور وہی میرے بھائی کے علاوہ دمشق کے بلفورڈ کے اسقفوں کے ساتھ ساتھ دیگر پادریوں کا بھی قاتل ہے، تو پھر وہ ہمارے انتقام سے بچ نہیں سکے گا۔ اس کے ہر عنوان، ہر عبارت پر خون کی چھاپ لگائیں گے اور اس کی حالت روتے گل کی طرح کر کے رکھ دیں گے۔ برنس جب خاموش ہوئی تو اس کے بعد برالون نے توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، دیکھ میری بیٹی، ہم یقیناً تیرے الفاظ کو عملی جامہ پہنا کر ثابت کریں گے کہ ہم دشمنوں سے انتقام لینے کی ہمت رکھتے ہیں۔ برالون ابھی اپنی بات مکمل نہ کرنے پایا تھا کہ بیچ میں برنس پھر بول پڑی، اے میرے باپ، میں اس تور نتائی سے دوہرا انتقام لوں گی۔ ایک تو یہ کہ وہ میرے بھائی کا قاتل ہے، دوسرا اس نے مجھے فریب میں رکھ کر مجھے اپنی محبت اور چاہت میں مبتلا کیا، اس طرح مجھے بھی اس نے بے وقوف اور احمق بنایا۔ میں اس کی ان دونوں حرکتوں سے انتقام خوب لوں گی۔ اے میرے باپ، میں آج ہی سے اپنی چند وفادار کا گروہ تربیت دینا شروع کر دوں گی، اس کے بعد میں خود نکلوں گی اور اس تور نتائی سے اپنے بھائی کا انتقام لوں گی۔ برنس جب خاموش ہوئی تو ان پادریوں میں سے جن کا نام نابل تھا بول پڑا، بلفورڈ کے حکمران، ہم دمشق سے پہلے انطاکیہ گئے، وہاں ہم انطاکیہ کے حکمران بوہیمان کی بھی خدمت میں حاضر ہوئے، اس لیے کہ دمشق سے جب ہم روانہ ہوئے تو ہم 4 پادری تھے، ہم چاروں نے انطاکیہ میں وہاں کے حکمران بوہیمان کے محل میں قیام کیا۔ ہمارے دوسرے ساتھی روم کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، اور وہاں وہ پائے اعظم کلیمنٹ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس سے التجا کریں گے کہ یورپ کی طاقتوں کو مصر کے سلطان رکن الدین کے خلاف نہ ختم ہونے والی جنگ کے لیے ابھارے، اور اگر ہم نے مصر کے سلطان رکن الدین کے خلاف صلیبی جنگوں کی ابتدا کرنے میں تاخیر کی تو خدشہ ہے کہ مصر کا سلطان جنوب سے لے کر شمال تک، جس میں انطاکیہ بھی شامل ہے، ساری عیسائی ریاستوں کو رونتا ہوا نکل جائے گا اور اسے سارے علاقے کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے رہے گا۔ اگر ایسا ہوا تو پھر نصرانیت کی یہ انتہا درجے کی بدقسمتی ہوگی۔ ہمارے 2 ساتھی یہی پیغام لے کر پائے اعظم کلیمنٹ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں، اور اس سے گزارش کریں گے کہ وہ یورپ کے حکمرانوں، خصوصیت کے ساتھ انگلستان اور فرانس کی مملکتوں پر زور ڈالے کہ وہ سلطان رکن الدین کے خلاف صلیبی جنگوں کا اعلان کر دے۔ برالون پھر فوراً بیچ میں بول پڑا، محترم نابل، اگر ایسا ہوا تو میں سمجھتا ہوں پھر حالات ضرور پلٹا کھائیں گے۔ اگر انگلستان اور فرانس کی سلطنتیں اپنے لشکروں کے ساتھ مصر یا ارض فلسطین کا رخ کریں اور مصر کے سلطان رکن الدین کے خلاف صف آرا ہونے کا تہیہ کریں، تو مجھے یقین ہے کہ نہ صرف یہ کہ فلسطین پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا، بلکہ مصر بھی اہل یورپ کی گرفت سے بچ نہ سکے گا۔ برالون کے خاموش ہو جانے پر وہی پادری پھر بول پڑا، محترم برالون، انطاکیہ میں قیام کے دوران وہاں کے حکمران بوہیمان کے سامنے ہم اس لنگڑے راہب کی پوری تفصیل پیش کی تھی۔ بوہیمان اور اس کا بیٹا یہ جان کر کہ لنگڑا راہب حقیقت میں رکن الدین کے لشکریوں کا سالار اول ہے، بڑے پریشان اور حیرت زدہ ہوئے تھے، اور انہوں نے اس خیال کا اظہار کیا تھا کہ تور نتائی جس نے لنگڑے راہب کا روپ دھارا تھا، یقیناً اس سے قتل کیا جانا چاہیے، اور یہ کام ہر صورت میں ہونا چاہیے۔ اس کام کی تکمیل کے لیے بوہیمان نے ہمارے ساتھ جبل شیخ کے 2 جوانوں کو بھیجا ہے، جنہوں نے ان دونوں بوہیمان ہی کے یہاں کسی اہم کام کے سلسلے میں قیام کر رکھا ہے، اور یہ دونوں جوان ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ جو میرے قریب کھڑا ہے، اس کا نام کاریون اور دوسرے کا نام برزیل ہے۔ انہوں نے یقین دلایا ہے کہ یہ مصر میں داخل ہو کر ہر صورت میں رکن الدین کے لشکروں کے سالار اول تور نتائی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ برالون نے اس بار بڑے غور سے ان دونوں باطنیوں کاریون اور برزیل کی طرف دیکھا، پھر ان دونوں کو مخاطب کیا،
सुनो जबल शेख के मोहतरम और जी इज्जत फिदाइयों, अगर तुम तुर्निताई का खात्मा करने में कामयाब हो जाओ तो फिर लौट कर मेरे पास आना, मैं तुम्हें ऐसे इनामात से नवाज दूंगा जिसकी तुम उम्मीद और तवक्को तक नहीं कर सकते हो। तुम कब तक यहाँ से मिस्र की तरफ रवाना होना पसंद करोगे? मेरे ख्याल में तुम दोनों को मिस्र जाने की जहमत ही उठाना नहीं पड़ेगी। तुर्निताई जरूर इन दिनों अपने सुल्तान रुकनुद्दीन के साथ जंगों में मसरूफ होगा, लिहाजा मैदान जंग में ही किसी हिलिये किसी बहाने से मुसलमानों के पड़ाव में दाखिल होकर तुम तुर्निताई का खात्मा कर सकते हो। बुरालून की इस गुफ्तगू पर कारियन बोल पड़ा, मोहतरम बुरालून, यकीनन ऐसा ही होगा। हम सिर्फ आने वाली रात आपके यहाँ क़याम करेंगे और कल हम यहाँ से रवाना होंगे और अब करीब आपको ये खबर मिलेगी कि हम दोनों ने मिलकर तुर्निताई का खात्मा कर दिया है और उसका खात्मा करने के बाद बहुत जल्द लौट कर आपके पास आएंगे। बुरालून इस फिदाई की गुफ्तगू पर खुश हो गया था। फिर उसने बड़ी तमानियत में उन चारों को मुखातिब किया, अब तुम चारों हमारे मेहमान खाने में क़याम करो। दोनों फिदाई तो कल अपनी मुहिम पर रवाना हो जाएंगे। मेरे मोहतरम पादरियों, तुम माहरे इस सिलसिले में क्या लाए अमल होगा? जवाब में नईउल बोल पड़ा, मोहतरम बुरालून, हम इन दोनों फिदाइयों के साथ ही रवाना होंगे और रास्ते में किसी सराय के अंदर क़याम करेंगे। ये दोनों तुर्निताई का खात्मा करने के बाद उसी सराय में हमें इसके मरने की इत्तला करेंगे। उसके बाद हम वापस दमिश्क जाएंगे और अपने साथियों को खुशखबरी सुनाएंगे कि तुर्निताई जिसने अस्कफों और पादरियों का खात्मा किया उसका भी खात्मा कर दिया गया है। बुरालून ने उनकी इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। फिर उसने अपने चौकीदार को तलब किया और उन चारों को उस चौकीदार के साथ अपने शाही मेहमान खाने की तरफ भिजवा दिया था। कैसरिया को फतह करने और उसका इंतजाम दुरुस्त करने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन ने कैसरिया से निकलकर अचानक जुनूब का रुख किया और आनन फानन और नसरानियों के किले अरसूफ के सामने अपने लश्कर के साथ नमूदार हुआ। किले का उसने मुहासरा कर लिया। यह किला जिसका नाम अरसूफ था, हॉस्पिटलस सलेबियों का एक इंतहाई नाकाबिल तस्खीर और मजबूत किला तस्वुर किया जाता था। कैसरिया का अंजाम देखकर उन लोगों ने जबरदस्त दिफाई और जंगी तैयारियां कर रखी थी। चुनांचे 40 दिन तक उस किले का मुहासरा जारी रहा और मुहासरीन इंतहाई पामरी से सुल्तान का मुकाबला करते रहे, लेकिन सुल्तान के पै दर पे जानलेवा हमलों के सामने आखिर वो आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत हारते चले गए, यहाँ तक कि सुल्तान रुकनुद्दीन की अफवाज उनकी दिफाई इस्तेहकामात को रोंद गई थी। अरसफ के किले के ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गई थी। सुल्तान के लश्करों का किले की फसील पर चढ़ना एक तूफान और इनकलाब बर्पा कर गया था। किले के ऊपर जिस कदर मुहाफिज थे, सुल्तान के लश्करों ने उन्हें तहे तेग कर दिया और किले का एक दरवाजा खोल दिया। फिर उस दरवाजे से सुल्तान अपने पूरे लश्कर के साथ सैलाब की सूरत में दाखिल हुआ और किले के अंदर जिसने भी तलवार उठाकर मुसलमानों से जंग करने की कोशिश की उसे कत्ल कर दिया गया। उस किले का भी वही हशर हुआ जो कैसरिया का हो चुका था। सुल्तान ने उसकी ईंट सींट बजा कर रख दी और उसकी मजबूत फसील और बुलंद बाला बुर्ज मिटाकर ख्वाब व ख्याल बनाकर रख दिए थे। अरसूफ की फतह के बाद सुल्तान ने बर्क रफ्तारी से सफद के किले का रुख किया और अपने लश्कर के साथ सफद नाम के उस किले को सुल्तान ने चारों तरफ से घेर लिया था। यह किला निहायत बुलंद और मजबूत था और मजबूत फसील से घिरा हुआ था। इसमें आम ईसाइयों के अलावा हैकली जंगजू की एक कसीर तादाद भी मौजूद थी। उन सब ने मुत्तहद होकर कई दिन तक सुल्तान रुकनुद्दीन के लश्कर का मुकाबला किया था। बिला आखिर सुल्तान और उसके लश्करों की ताबड़तोड़ हमलों के सामने हथियार डालने पर मजबूर हो गए थे। सुल्तान ने किले में दाखिल होकर आम शहरियों को तो अमान दे दी, लेकिन जिन जंगजुओं ने सुल्तान और उसके लश्करों के सामने हथियार उठाए हुए थे उन्हें कत्ल कर दिया गया। इस जंग में लगभग 2000 के करीब हैकली जंगजू गिरफ्तार है और उन्हें सुल्तान के सामने पेश किया गया, लेकिन चूंकि ये लोग माजी में मुसलमानों पर इंतहा दर्जे के मजालिम ढाते रहे थे और वो मुसलमान जो सफद के नवाही इलाकों में पुरअमन तौर पर जिंदगी गुजार रहे थे, ये उन बेगुनाह मुसलमानों पर भी हमलावर होते, उन्हें लूटते, उनका कत्लेआम करते और तरह तरह से अजियतें पहुंचाते थे। लिहाजा ये लोग सुल्तान की निगाहों में नाकाबिल माफी थे। इसी बिना पर सुल्तान ने उनके कत्ल का हुक्म दे दिया था। यूं अरसूफ की तरह सफद पर भी सुल्तान ने कब्जा कर लिया था। इस किले पर कब्जे करने के बाद सुल्तान ने उसकी फसील पर एक खुतबा नस्ब कराया। ये खुतबा आज भी वैसा का वैसा मौजूद है और उस खुतबे पर जिली हुर्फों में लिखा हुआ है, सिकंदर जमा उमादुद्दीन। सफद को फतह करने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन ने दरियाए उर्दुन पर एक अजीम शान पुल तामीर कराया और उस पर भी अपना खुतबा नस्ब कराया। ये पुल अब तक मौजूद है और जसरुद्दानिया के नाम से मशहूर है। ये पुल अब खुश्की पर कायम है क्योंकि दरिया उर्दुन ने बाद में अपना रुख बदल लिया और कई मील दूर जाकर बहने लगा था। जब सुल्तान ने सफद को फतह कर लिया तो नसरानी अपनी कुव्वत को याफा शहर के अंदर और बाहर जमा करने लगे थे और याफा को उन्होंने अपनी जंगी तैयारियों और जंगी कुव्वत का एक तरह से मरकज बना लिया था। सुल्तान को जब इन हालात की खबर हुई तो अपने लश्कर के साथ बड़ी तेजी से सुल्तान ने
याफा का रुख किया। ये शहर पहले ही सलीबियों का मरकज था, लेकिन बाद की जंगी तैयारियों ने उसे एक तरह से सलीबी जंगों का सबसे बड़ा मरकज बनाकर रख दिया था। सुल्तान जब याफा पर हमलावर हुआ तो मुत्तहद सलीबी लश्कर ने शहर से बाहर निकलकर मुकाबला लगभग बाहर घुटने टेक दिए थे। याफा शहर से बाहर सलीबियों और सुल्तान के दरमियान हौलनाक जंग हुई, जिसमें सुल्तान ने सलीबियों को बदतरीन शिकस्त दी और शहर को फतह करके किले की फसील पर सुल्तान ने अपना परचम लहरा दिया। यही याफा शहर तल अयीब के नाम से इसराइली रियासत का दारुल हुकूमत है। तल यबीब के नाम से इसराइली रियासत का दारुल हुकूमत है। याफा को फतह करने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन ने दरिया लितानी के किनारे नाकाबिल तस्खीर समझे जाने वाले बुरालून के किले बिलफोर्ड पर कब्जा करने का इरादा कर लिया था। उसी मकसद के लिए सुल्तान ने अपने लश्कर के साथ बिलफोर्ड की तरफ कूच किया। अपनी जंगी तैयारियों को मुस्तहकम करने और अपने लश्करियों को सुस्ता कर ताज़ादम होने के लिए सुल्तान ने सूसा और बिलफोर्ड के दरमियान अपने लश्कर के साथ पड़ाव कर लिया था। अपने घोड़े को मियाना रवि से हाँकता हुआ तो नीता एक रोज सूसा के सिराय के सदर दरवाजे के पास आया। उसने देखा नालगर अमीज बिन खजरुम एक घोड़े की नाल बंदी कर रहा था और उसकी दुकान के करीब ही जो छप्पर बना हुआ था उसके अंदर कदगान गर्म भट्टी पर काम करते हुए लोहे की नाल तैयार कर रहा था। अमीज बिन खजरुम के पास जाकर तुर निताई अपने घोड़े से उतरा। इब्ने खजरुम चूंकि काम में बुरी तरह मसरूफ था, लिहाजा अभी तक उसने तुर निताई की तरफ नहीं देखा था। घोड़े से उतरने के बाद जब तुर निताई ने उससे सलाम कहा तब चौंक कर इब्ने खजरुम ने तुर निताई की तरफ देखा। फिर काम छोड़कर वो भागा और बड़े पुरजोश अंदाज में उसने तुर निताई को अपने साथ लिपेट लिया था। इतनी देर तक कदगान भी छप्पर में से निकला, तकरीबन भागते हुए आगे बढ़ा। वो भी तुर निताई से बगलगीर हुआ, फिर सरगोशी के अंदाज में कहने लगा, हमारे मुहसिन, हमारे मेहरबान, मैं आपको सूसा नाम की इस बस्ती में खुशामदीद कहता हूँ। जवाब में तुर निताई कुछ कहना चाहता था कि रुक गया, इसलिए कि सामने की तरफ से एक लड़की आई थी। उसने अपना चेहरा ढांप रखा था और अपने हाथों में उसने कुछ बर्तन भी उठा रखे थे। करीब आकर लड़की ने अपने चेहरे पर से नकाब हटाया। तुर निताई उसे पहचान गया। वो अर्जुन थी, कदगान की बीवी, और उन दोनों को इब्ने खजरुम ने अपना औलाद समझकर अपने यहाँ रख लिया था। करीब आकर अपने चेहरे से नकाब हटाने के बाद अपनी शीरीन आवाज में अर्जुन ने तुर निताई को मुखातिब किया, मेरे मुहसिन, मेरे मुरब्बी, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। जिस वक्त पहली बार आप इस बस्ती में आए थे तो अम खजरुम ने आपका तारुफ हम दोनों मियाँ बीवी को लूस नाम के गुलाम की हैसियत से कराया था, लेकिन बाद में तफसील के साथ उन्होंने हमें बताया कि आप मिस्र के सुल्तान रुकनुद्दीन के लश्करों के सालार अव्वल तुर निताई हैं। मैं आपको अपने यहाँ खुशामदीद कहती हूँ। अर्जुन की इस गुफ्तगू का जवाब देने से कबल तुर निताई चौंक सा पड़ा, इसलिए कि उसने देखा कदगान तकरीबन भागता हुआ उसके पास से हटकर झोपड़े में दाखिल हो गया था। फिर वो वहां खड़ा होकर अर्जुन को अपना चेहरा ढांपने और छप्पर में दाखिल होने के लिए इशारा करने लगा था। ये इशारा मिलते ही अर्जुन ने फौरन अपने चेहरे पर नकाब डाल लिया। फिर वो बड़ी तेजी से झोपड़ के अंदर दाखिल हो गई थी। उन दोनों की इस हरकत में जहां तुर निताई परेशान हो गया था, वह अमीज बिन खजरुम चारों तरफ निगाह दौड़ाए हुए तजस्सुसाना अंदाज में देखने लगा था। उन दोनों की इस हालत पर तुर निताई भी तेजी से झोपड़े में दाखिल हुआ था। ताहम अमीज बिन खजरुम हस्बे मामूल बाहर ही खड़ा रहा था। झोपड़े में दाखिल होने के बाद तुर निताई थोड़ी देर तक बारी बारी कदगान और अर्जुन का जायजा लेता रहा। फिर उसने कदगान को मुखातिब किया, कदगान मेरे भाई, तुम बाहर से भागकर झोपड़े में क्यों आए और तुमने अर्जुन को भी क्यों इशारे से चेहरा ढांपने और झोपड़े के अंदर दाखिल होने के लिए कहा। जवाब में कदगान ने सहमे से अंदाज में तुर निताई की तरफ देखा। तुर निताई ने उसका हौसला बढ़ाया, कदगान फिक्र मत कर, अगर कोई खतरे की बात है तो बतला, मुझसे कह, मैं तुझे अपना भाई समझता हूँ और अर्जुन को अपनी बहन बना चुका हूँ और तुम दोनों को खूब हिफाजत करूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुर निताई की इस गुफ्तगू से कदगान को किसी कदर हौसला हुआ और वो झोपड़े के दरवाजे पर आया और तुर निताई को मुखातिब करके कहने लगा, तुर निताई मेरे अजीम भाई, जिस वक्त मैं आपके साथ खड़ा गुफ्तगू कर रहा था तो जरा फासले पर सिराय के बाहर मैंने दो घुड़सवारों को देखा। शायद आपकी निगाह उन पर नहीं पड़ी, आपकी पीठ उस तरफ थी। वो दोनों सियाह रंग के घोड़ों पर सवार थे और वो दोनों ही फिदाई थे। जबले शेख की मिस्कीन है, मैं उन दोनों को देख चुका था। मेरे ख्याल में वो किसी खास काम पर मुकर किए गए हैं। सूसा नाम की बस्ती से वो शिमाल की तरफ जा रहे थे। मैं समझता हूँ उनका यूं सूसा में मंडलाना मेरी और अर्जुन की जिंदगी को खतरे में डाल सकेगा। लम्हे भर के लिए तुर निताई ने बड़ी शफकत और मोहब्बत में बारी बारी कदगान और अर्जुन को देखा। फिर उसकी आवाज बुलंद हुई, मेरे अजीजों, तुम दोनों फिक्रमंद मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि इन फिदाइयों की हर अधूरी ख्वाहिश पर मैं खुशी का अलावा बनकर निकलूंगा। ये फिदाई तुम्हें कुछ नहीं कर सकेंगे। उसके बाद उस झोपड़े से निकलकर तुर निताई अपने घोड़े की तरफ भागा।
तुम सब यही रुक कर मेरा इंतजार करो। अगर वो दोनों सियाह रंग के घोड़ों पर सवार है तो मैं उन्हें पहचान लूंगा और उन्हें जा लूंगा और बचकर भागने नहीं दूंगा। अमीर की इस इकदाम पर कदगान फिक्रमंद होकर बोल पड़ा, नहीं तुर्निताई मेरे भाई, मैं आपको तन्हा और अकेला नहीं जाने दूंगा। मैं उनके तरीके वारदात से खूब वाकिफ और आगाह हूँ। वो जहर भरे हथियार इस्तेमाल करने में महारत रखते हैं और उनके पास उस जहर का त्रियाग भी है। मैं आपके साथ जाऊंगा। इस मौके पर उर्जुन फिर बोल पड़ी, फिर मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। इसके साथ ही दोनों मियाँ भी झोपड़े से निकलकर भागे। नाल बंदी के लिए जो घोड़े वहां खड़े हुए थे उन पर सवार होकर तुर्निताई के पीछे हो लिए थे। अमीस बिन खजरूम ने सारा मामला बड़ी फिक्रमंदी से देख रहा था। उन तीनों के जाने के बाद उसने भी कुछ सोचा। थोड़ी देर पहले जिस घोड़े की नालबंदी कर रहा था उस पर वो सवार हुआ और घोड़े को एड़ लगाकर उनके पीछे पीछे सर पर दौड़ा दिया था। शहर की हदूद से निकलते हुए अचानक कदगान चिल्ला उठा और अपने सामने इशारा किया, तुर्निताई मेरे भाई, वो सामने देखो, जो सियाह रंग के घोड़े पर सवार दो जो अवान जा रहे हैं वही फिदाई है और वो किसी खास मकसद के तहत इन इलाकों में गश्त कर रहे हैं। उनकी इस तरफ आने को मैं समझता हूँ दो ही मकसद हो सकते हैं। अव्वल है कि वो मेरे और अर्जुन के ताक़ुब में है या वो खुद आपकी ताक में है और वो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अमीर ने कदगान की इस गुफ्तगू का कोई जवाब न दिया। अपने घोड़े को एड़ लगाते हुए उसने उसकी रफ्तार तेज कर दी थी। उसकी तरफ देखते हुए कदगान और अर्जुन भी अपने घोड़ों को तेज भगाने लगे थे। थोड़े से आगे जाकर कोहिस्तानी सिलसिला शुरू हो जाता था और अब वो दोनों फिदाई कोहिस्तानी सिलसिले में दाखिल हो चुके थे। उन दोनों फिदाइयों का ताकुब करते हुए कोहिस्तानी सिलसिले में तुर्निताई जो ही एक मोड़ पर मुड़ा। सामने की तरफ से सियारों के घोड़े पर सवार दोनों फिदाई हल्का बिस्मिल खुरेश तूफान की तरह नमदार हुए और अमीर तुर्निताई पर टूट पड़े थे। कोहिस्तानी सिलसिले में तुर्निताई पहले एहतियात से काम ले रहा था। उसके बाएं हाथ की गिरफ्त उसकी ढाल पर थी जबकि बरहाना तलवार उसके दाएं हाथ में थी। जो ही वो दोनों फिदाई हमलावर हुए, अमीर ने अब एक तलवार को अपने ढाल पर लिया और दूसरे के हमले को उसने अपनी तलवार पर रोक लिया था। दोनों फिदाई एक तवक्को लिए बैठे हुए थे कि शायद वो अपने पहले हमले में तुर्निताई का काम तमाम कर देंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अमीर तुर्निताई उनके लिए कड़ियल और जोर आवर साबित हुआ। फिर तेज हमलों से अमीर तुर्निताई ने उन दोनों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया था। उन दोनों को पीछे हटते हुए तुर्निताई ने अचानक एक वार अपनी ढाल पर रोका और दूसरे पर ऐसा अंदाज में अपनी तलवार पर बरसाई कि वो अपना दिफा ना कर सका और अमीर की तलवार से उसे काटती चली गई थी। पहले इतना देर तक तुर्निताई पर हमलावर हो चुका था, करीब था कि वो अपनी तलवार के खतरनाक वार से तुर्निताई को नुकसान पहुंचाता कि पुष्ट की जानिब से हवाओं को चीरता हुआ सुनसुनाता हुआ एक तीर आया और उस फिदाई के शाने में पुष्ट हो गया था। उस तीर के लगने और दर्द की शिद्दत से वो फिदाई अमीर तुर्निताई पर वार करना भूल गया, पर वो था बड़ा सख्त जान। एक झटके से उसने वो तीर निकाल कर फेंक दिया और अपनी पट्टी से ताक कर खंजर अमीर तुर्निताई को मारा। खंजर निशाने पर ना लगा और अमीर तुर्निताई की रान को चीरता हुआ निकल गया था। इतनी देर तक एक और तीर पुष्ट की जानिब से सुनसुनाता हुआ आया और उसके दूसरे शाने को भी जख्मी करता हुआ चला गया और वो फिदाई दूसरा तीर लगने से अपना तवाज़ु खो बैठा और घोड़े से नीचे गिर गया। इतनी देर तक कदगान फौरन हरकत में आया और अपने घोड़े से वो कूद पड़ा। अर्जुन भी अपने घोड़े से उतर गई। फिर वो दोनों एक दूसरे को मखसूस इशारा करते हुए तुर्निताई की तरफ भागे। तुर्निताई के घोड़े की खर्चीन से एक कपड़ा जल्दी जल्दी कदगान ने निकाला। कपड़े से कदगान ने तुर्निताई की रान को उस जगह से ऊपर कसकर बांध दिया था जहां उस फिदाई ने खंजर मारा था। फिर कदगान ने अमीर तुर्निताई की तरफ देखा। अमीर, ये फिदाई जहर आलूद खंजर और तलवारें इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपकी रान कपड़े से कसकर बांध दी है। अगर एक खंजर जहरीला है तो फिर इसका जहर आपके जिस्म में नहीं फैलेगा। इतनी देर तक अमीस बिन खजरूम भी वहां पहुंच चुका था। वो भी घोड़े से उतरकर बड़ी फिक्रमंदी से तुर्निताई की रान के जख्म को देखने लगा था। इस मौके पर तुर्निताई बोला, कदगान मेरे भाई, तुम मेरी ये तलवार लो, आगे बढ़ो और ये जो फिदाई अपने घोड़े से गिरा हुआ है इसकी दोनों हाथ उसकी पुष्ट पर कसकर बांधो। अगर ये मजामत करे तो इसे जान से मत मारना, एक टांग काट देना। मैं इससे बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ। ये गुफ्तगू उस फिदाई ने भी सुन ली थी। अमीर की तलवार लेकर कदगान आगे बढ़ा, उस फिदाई के पास जा खड़ा हुआ। पहले उसे गैर मुसल्लह किया, फिर उसके घोड़े की जेन से ही एक रस्सी निकालकर उसके दोनों हाथ उसके पुष्ट पर कसकर बांध दिए थे। दोबारा कदगान तुर्निताई के पास आ खड़ा हुआ। इस मौके पर तुर्निताई के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। फिर उसकी आवाज एक बार फिर सुनाई दी, कदगान और अर्जुन, मेरे दोनों बहन भाइयों, मेरे घोड़े के बाएं जानिब की खिरचीन से मरहम निकालो, मेरे खम पर लगा दो। मुझे उम्मीद है कि मरहम खंजर के जहर को जायल कर देगा। कदगान और अर्जुन दोनों मियाँ भी हरकत में आए। तुर्निताई के घोड़े की खर्चीन से उन्होंने मरहम निकाला और जख्म पर लगाकर उस पर कसकर पट्टी बांध दी थी। अचानक तुर्निताई, कदगान, अर्जुन और अमीस बिन खजरूम चौक से पड़े
उन्होंने देखा कि करीब चट्टान के पीछे से एक लड़की उठी और दूसरी चट्टान की तरफ भागी और वो अपने चेहरे को ढांपी हुई थी और भागने के अंदाज से अमीर तुनिता ने अंदाजा लगाया था कि वो लड़की है। दूसरी चट्टान के करीब जाकर वो अपने घोड़े पर सवार हुई और अपने घोड़े को सर पर दौड़ाती हुए मुखालिफत सिंह चली गई थी। अमीर तुनिता कुछ सोचता रहा, फिर अपने साथियों को मुखातिब किया, ये लड़की कौन हो सकती है और क्यों इसने मेरी जान बचाई? इसने सिर्फ मेरी खातिर इस फिदाई पर 2 तीर चलाए और उसकी पीठ पर तीर पुष्ट करते हुए एक तरह से उसे मेरे सामने बेबस किया। काश ये रुकती मेरे सामने आती, मैं उसे देखता वो कौन है और उसका शुक्रिया ही अदा करता। इतनी देर तक वो लड़की अपने घोड़े को सर पर दौड़ाते हुए उसकी निगाहों से रूपोश हो गई थी। तुनिता फिर कदगान की तरफ देखते हुए कहने लगा, कदगान मेरे भाई, इस फिदाई को घोड़े की पीठ पर रखो और खुद इसके पीछे बैठ जाओ। आओ अब लश्कर की तरफ चलते हैं, इसलिए कि मेरे लश्कर का पड़ाव यहाँ से नजदीक ही है। सब ने तुनिता की इस तजवीज से इत्तेफाक किया। फिर सब घोड़ों पर सवार हुए और लश्कर के पड़ाव की तरफ चल रहे थे। जो ही तुनिता अपने पड़ाव में दाखिल हुआ, उसके जख्मी होने की इत्तला जंगल की आग की तरह पूरे लश्कर में फैल गई थी। अपने घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता हाँकता हुआ तुनिता अपने खीमे की तरफ बढ़ रहा था और लश्करों का एक हुजूम उसके पीछे पीछे हो रहा था। लश्करगाह के उस में जहाँ सुल्तान का खीमा नस्ब किया जा रहा था, उस खीमे की एक तरफ तुनिताई और सैफुद्दीन का खीमा भी नस्ब हो रहा था। जो ही तुनिताई अपने साथियों के साथ अपने खीमे के करीब गया, दंग रह गया। उसने देखा कि उसके खीमे के बाहर सुल्तान के अलावा सैफुद्दीन, हुसामुद्दीन और मिस्र के रईसुत तुरबा इब्न नफीस खड़े थे। इब्न नफीस अपने दौर के बेमिसल तबीब थे। पूरा नाम अलाउद्दीन अली इब्न हज़िन था और इब्न नफीस के नाम से मशहूर थे। ये 7वीं सदी हिजरी की यक्ताई ज़माना तबीब और फिकाह के अलावा सर्फ और नौ और मंतिक के एक जय्यद आलिम थे। 607 हिजरी के लगभग दमिश्क में पैदा हुए और वहाँ के अल बीमार नूरी में तिब की तालीम हासिल की। इसके अलावा उन्होंने दूसरे उलूम मुतवादिला में भी महारत हासिल की। कुछ अरसे बाद वो काहिरा चले गए। वहाँ वो एक तरफ एक शफा खाना में तिब पढ़ाते थे और दूसरी तरफ मदरसा मसूरिया में फिकाह का दर्स दिया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इब्न नफीस की इसकी महारत की वजह से ऐसी शोहरत हुई कि सुल्तान अपने दीन ने उन्हें रईसुत तुलबा का अहद अता किया। इब्न नफीस ने 687 हिजरी में वफात पाई। उन्होंने गिरां कदर तसनीफ़े ज़ख़ीरा अपने यादगार में छोड़ा। उनमें से सबसे अहम किताब इब्न सीना की किताब कानून की शरह थी। इस किताब ने मशरिक और मगरिब में बड़ी शोहरत पाई और सदियों तक इसकी शरह और शुरूरों की शरह लिखी जाती रही। इस किताब के अलावा इब्न नफीस की 5 और भी बड़ी नायाब किताबें थी। इब्न नफीस तिब और दूसरे उलूम के ऐसे माहिर और ऐसे जयद आलिम थे कि कहा जाता है कि इब्न नफीस की बेशतर तसानीफ तिब ज़ात थी और उनकी तैयारियां में ही उन्होंने दूसरों किताबों से कोई मदद ना ली। अपनी वफा से पहले उन्होंने अपने मकान और अजीम शान कुतुब खाना काहिरा के शिफा खाना अल मंसूरा के नाम वसीयत कर दिया था। अपने खीमे के करीब आकर तुनिता ने जब अपने घोड़े को रोका तो सैफुद्दीन और हुसामुद्दीन ने आगे बढ़कर उससे सहारा देकर तुनिताई को नीचे उतारना चाहा, पर इतनी देर तक कई जवान भागते हुए आगे बढ़े। तुनिताई को सहारा देना चाहा। इस मौके पर तुनिताई मुस्कुरा कहने लगा, मेरे साथियों, मेरे अजीजों, फिक्रमंद मत हो, मैं इतना भी जख्मी नहीं हुआ कि अपने घोड़े से उतर भी ना सकूं। इसके बावजूद उन जवानों ने जबरदस्ती तुनिताई को सहारा देकर नीचे उतारा। इस मौके पर सुल्तान इब्नुद्दीन, सैफुद्दीन, तबीब इब्न नफीस और हुसामुद्दीन आगे बढ़े। उन्होंने देखा तुनिताई की जिस टांग पर जहर में भुजा हुआ खंजर मारा गया था, वो टांग काफी सूज गई थी। ये सूरत हाल देखते हुए चारों एक तरह से परेशान हो गए थे। इस मौके पर इब्न नफीस कड़कती हुई आवाज में बोल पड़ा, अमीर की राह छोड़ दो, उन्हें खीमे में ले जाया जाए ताकि मैं उनके जख्म का जायजा ले सकूं। इब्न नफीस के अल्फाज के साथ ही जो लश्करियों का वहाँ हुजूम था वो छटने लगे। इब्न नफीस तुनिताई को सहारा देता हुआ खीमे की तरफ ले जा रहा था। सुल्तान इब्नुद्दीन, सैफुद्दीन और हुसामुद्दीन उसके साथ साथ थे। उनके पीछे पीछे अमीस बिन खजून, कदगान और उर्जुन भी खीमे में दाखिल हुए थे। इब्न नफीस ने तुनिताई को खीमे में लिटा दिया। अमीस बिन खजून, कदगान और उर्जुन की तरफ इशारा करते हुए तुनिताई ने सबसे पहले उनका तारुफ कराया। इस मौके पर सुल्तान इब्नुद्दीन ने तुनिताई की बात काटी और उन तीनों को मुखातिब किया, तुम तीनों ने हम पर बड़ा एहसान किया है कि जख्मी तुनिताई को पड़ाव में लेकर आए हो। सुल्तान शायद मजीद कुछ कहता, पर अमीस बिन खजून फौरन जवाब में बोल पड़ा, सुल्तान, मैं सूसा का रहने वाला हूँ। एक कदगान और उर्जुन मेरा बेटा और बेटी है। मैं तुनिताई को भी अपने बेटे ही की मानद ख्याल करता हूँ। उसे लश्कर में पहुँचाना कोई एहसान नहीं सुल्तान, ये मेरा फर्ज था जो मुझे हर सूरत में उससे अपने बेटे और बेटी के साथ पूरा करना था।
ابن खजरून की इस गुफ्तगू पर सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। इब्न खजरून, तुम्हारी गुफ्तगू, तुम्हारी बातें इस बात की निशानदेही करती है कि तुम एक हमदर्द शफीक इंसान के अलावा अपने वतन और मिलत के बेहतरीन जानिसारों में से एक हो। मैं तुम्हारी इस गुफ्तगू, तुम्हारे इस रवैये को सलाम करता हूँ। इसके साथ ही सुल्तान ने उन तीनों को बैठने का इशारा किया था। सुल्तान का इशारा पाते हुए वो सब वहां बैठ गए। सुल्तान रुकनुद्दीन, सैफुद्दीन, हुसामुद्दीन भी खीमे में लेटे हुए तुर्निताई के पहलू में बैठ चुके थे। इब्न नफीस ने बड़ी तेजी से तुर्निताई की टांग पर बंधी हुई पट्टी खोली। उसने देखा टांग काफी सूज चुकी थी। टांग के ऊपर वाले हिस्से में जो कसकर कपड़ा बांधा गया था, इब्न नफीस थोड़ी देर तक उस कपड़े का जायजा लेता रहा। उसी लम्हे उसके चेहरे पर खुशगवार और इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट भी नमूदार हुई थी। फिर उसने इब्न खजरून को मुखातिब किया। इब्न खजरून, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अमीर की इस जख्मी होने के बाद इसकी टांग के बालाई हिस्से पर एक कपड़ा किसने बांधा? जवाब में इब्न खजरून ने बड़े शफीकाना से अंदाज में कदगान की तरफ देखा। कदगान खुद ही बोल पड़ा, तभी भी मोहतरम, ये कपड़ा कसकर मैंने इस एहतियात के तहत बांधा था कि अमीर पर हमलावर होने वाले दोनों ही फिदाई थे, और फिर फिदाइन के हथियार में मैं जानता हूँ हर वक्त हौलनाक और जानलेवा जहर में भिजे रहते हैं। इस मौके पर अचानक तुर्निताई बोल पड़ा और कदगान को मुखातिब किया। कदगान, मेरे भाई, जिस फिदाई को हमने जिंदा पकड़ा था उसे कहाँ छोड़ आए? कदगान फौरन अपनी जगह उठ खड़ा हुआ। वो तो मेरे घोड़े पर ही है, मैं उसे खीमे में लाना भूल गया। तुर्निताई फौरन चौंक कर कहा, उसे फौरन खीमे में के अंदर लाओ, मैं उसे बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ। कदगान भागा भागा थोड़ी देर बाद लौटा। उसने जख्मी फिदाई को अपनी पीठ पर उठा रखा था। उसने उस फिदाई को सुल्तान के पांव के करीब जमीन पर डाल दिया था। सुल्तान थोड़ी देर तक उस फिदाई को बड़ी हकारत और बड़ी नफरत से देखता रहा। उसके बाद सुल्तान ने उसके शाने पर पांव की एक ठोकर मारी। तो ये है वो बदबख्त फिदाई जिसने मेरे बेटे पर हमला किया। सुल्तान के खामोश होने पर अमीर सैफुद्दीन बोल पड़ा, तुर्निताई, मेरे बेटे, मैं जानता हूँ तुम इस फिदाई से क्या पूछना पसंद करोगे। तुम लेटे रहो, वही बातें मैं खुद इससे पूछता हूँ। जवाब में तुर्निताई ने अजीब से अंदाज में सैफुद्दीन की तरफ देखा। वो कुछ कहना ही चाहता था कि सैफुद्दीन बोल पड़ा, तुर्निताई, तुम इस फिदाई से यकीनन ये पूछना चाहोगे कि उसे तुम पर हमलावर होने के लिए किसने मुकर्रर किया था। तुम ये भी जानना चाहोगे कि किन उम्र की बिना पर इस फिदाई ने तुम्हें अपना हदफ बनाना चाहा। सैफुद्दीन की इस गुफ्तगू पर तुर्निताई मुस्कुरा और कहने लगा, सैफुद्दीन, आपका कहना दुरुस्त है। सैफुद्दीन फिर बोल पड़ा, अगर मेरा कहना दुरुस्त है तो फिर तुम आराम से लेटे रहो, मैं खुद ही इससे पूछ लूंगा। पहले तुम्हारे जख्म की मरहम पट्टी इब्न नफीस कर ले, फिर मैं अपने काम की इब्तिदा करता हूँ। इब्न नफीस ने इस मौके पर कदगान को मुखातिब किया। कदगान, मेरे अजीज, तुमने अमीर की टांग के बाला हिस्से पर जो एक कसकर कपड़ा बांधा है, मैं समझता हूँ तुमने बड़ी एहतियात, बड़ी महारत का सबूत दिया है। इस कपड़े की वजह से अमीर के बालाई जिस्म में जहर नहीं फैला। टांग बेशक जहर की वजह से खासी सूज चुकी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चंद दिन तक ठीक हो जाएगी और अमीर पहले की तरह भागने दौड़ने लगेंगे। इसके साथ ही इब्न नफीस ने अपनी चरनी थैले के अंदर से नश्तर निकाला। उससे काम लेते हुए तुर्निताई के जख्म को चारों तरफ से काटते हुए खूब फैलाया। उसके बाद दोनों तरफ से उसने टांग को खूब दबा दबा कर अपने हाथों को जख्म की तरफ लाते हुए काफी खून निकाला। फिर उसने नीम गर्म पानी से जख्म धो दिए। थोड़े से पानी में सुफूफ मिलाकर जख्म को फिर साफ करके खुश्क किया। उसके बाद मरहम लगाकर उसने उस पांव से नई पट्टी बांधी थी। तुर्निताई फिर इब्न नफीस कहने लगा, तुर्निताई, मेरे बेटे, खतरे की कोई बात नहीं है। जो मरहम मैंने लगाया है वो ऐसा कारगर है कि अगर ये जहर तुम्हारे जिस्म तक भी पहुंच जाता तो ये मरहम उसे निकाल कर बाहर फेंक देता और तुम्हें कोई नुकसान ना होने देता। देख मेरे बेटे, चंद दिन तक ज्यादा चलने फिरने से परहेज करना। मुझे उम्मीद है कि चंद दिन तक तुम ठीक हो जाओगे। तुर्निताई ने मुस्कुरा कर इब्न नफीस की तरफ देखा। इस मौके पर उसने इब्न नफीस का शुक्रिया अदा किया। आए उसी लम्हे अमीर सैफुद्दीन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और तुर्निताई से पूछा, तुर्निताई, मेरे बेटे, इस फिदाई के साथ मुझे अपने काम की इब्तिदा करने की इजाजत है। सैफुद्दीन के अल्फाज पर सुल्तान ही नहीं, हुसामुद्दीन, इब्न नफीस में मुस्कुरा दिए। फिर खीमे में तुर्निताई की आवाज गूंजी, अमीर, आप मालिक हैं, जैसा चाहें आप अब इस फिदाई से सुलूक करें। अपनी जगह से उठकर सैफुद्दीन उस फिदाई के करीब आकर बैठा। फिर धीमे से आवाज में उसे मुखातिब किया, देख, मैं तुझ पर सख्ती नहीं करता। तू मुझे इसकी इब्तिदा करने से पहले ही बता दे कि तुर्निताई पर हमलावर होने के लिए तुम्हें किसने तरगीब दी और उसके पीछे क्या मकासद बिना थे। उस फिदाई ने तंजिया से अंदाज में सैफुद्दीन की तरफ देखा। फिर उसने कुर्द भरी आवाज में कहा, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। मुझसे उम्मीद ना रखना कि जो बातें तुम मुझसे पूछना चाहते हो उनका तुमको मैं जवाब दे सकूंगा। इस फिदाई के ऐसे जवाब पर सैफुद्दीन की हालत बदल गई थी और वो गुस्से में उसकी आंखें आग बरसाने लगी थी। देख, बिल्ली का गोश्त खाने वाले
मेरा नाम सैफुद्दीन है, किसी धोखे किसी फरेब में मत रहना। हम वो लोग हैं जो जंगों का शोला मजलिस से ख्वाबों को कोचा कोचा बना कर रखते हैं। सुन बदतरीन और गलीज इंसान, जहाँ हम अपनों के लिए सदाओं में ढलता गीत है, वह हम दुश्मन के लिए जहर में बुझा हुआ खंजर है। इसके जवाब में उस फिदाई ने कहना शुरू किया, सैफुद्दीन फिर तो अपना हर हरबा अपना हर हिलिया आजमा कर देख। हम लोग भी जमदार और मकतूल सजाने वाले अहले हुनर हैं। हम लोग हर दर्द सहने के लिए तैयार हैं। अमीर सैफुद्दीन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। अगर ये बात है तो फिर इंतजार कर और देख कैसे मैं तेरे नफरत के बारूद को रात में तेरे हर धर्मी तेरे इरादों को असीर बनाकर रखता हूँ। थोड़ी देर बाद सैफुद्दीन दोबारा खीमे में आया। उसके बाद दो जवान भी थे जिनके हाथ में लोहे की सुएं जिनमें रस्सियां लगी हुई थी। सैफुद्दीन फिर अपनी जगह पर बैठ गया और एक बार फिर उसने फिदाई को मुखातिब किया, इंसानियत के दुश्मन, कबल इसके कि मैं अपने काम की इब्तिदा करूं, तेरे लिए एक मौका है। तू बगैर अजियत के जो कुछ मैं पूछना चाहता हूं बता दे, वरना मैं तुझे ऐसे कुर्ब में मुब्तला करूंगा तो आपसे आप बोलना शुरू हो जाएगा। उस फिदाई ने सैफुद्दीन की तरफ देखे बगैर जवाब दिया, देख सैफुद्दीन, मुझसे ऐसी किसी बात की तवक्को ना रखना। मैं मर सकता हूं मगर तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता। उस फिदाई के इस जवाब पर अमीर सैफुद्दीन ने अपने साथ आने वाले दोनों जवानों को मखसूस इशारा किया, जिस पर वो दोनों हरकत में आए। वो उस जगह बैठ गए जिस जगह फिदाई के पांव पिंडली के पुष्ट और रीढ़ी के ऊपर बंधे हुए थे। फिर उन्होंने रस्सियों से सुई चुभोकर उस फिदाई को बांधना शुरू किया और दर्द की वजह से वो फिदाई बिलबिला उठा। फिर सैफुद्दीन की तरफ देखते हुए मन्नत करने के अंदाज में कहने लगा, अमीर पूछो, तुम क्या पूछते हो, मैं तुम्हारे हर सवाल का सच्चाई पर मबनी जवाब दूंगा। उस फिदाई के जवाब पर जहां सुल्तान रुकनुद्दीन, हुसामुद्दीन तुर्निता और दीगर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी, वहां सैफुद्दीन के चेहरे पर भी हर गोशे को तबस्सुम नमूदार हुआ था। फिर फिदाई कहने लगा, फिदाई, वो लम्हा अब गुजर चुका है। फिर सैफुद्दीन कहने लगा, वो लम्हा अब गुजर चुका है जो तेरे लिए पुरअमन था और तुझे जवाब देना चाहिए था। अब जिस काम की मैंने इब्तिदा की है उसकी तकमील होने दो, उसके बाद तुम देखना तो आपसे आप बोलेगा और तड़प तड़प कर मेरे सवालों का जवाब देगा। देखते ही देखते एड़ी के ऊपर वाले पट्टों के पीछे उन दोनों लश्करियों ने रस्सियां डाल दी थी। अमीर सैफुद्दीन का दूसरा इशारा पाने के बाद उन रस्सियों को खींचते हुए वो दोनों जवान ने फिदाई को इस तरह ऊपर उठाया कि उसकी टांगे ऊपर सर नीचे हो गया था। फिर उसको मजीद ऊपर उठाते हुए उन्होंने रस्सियों को खीमे के ऊपर दरमियान में पड़ी हुई लकड़ी से बांध दिया था। अब उस फिदाई के पांव खीमे की बीच वाली लकड़ी से टकरा रहे थे और उसका सर जमीन से उठा हुआ था और वो पूरी तरह फिजा में लटक रहा था और बार बार अमीर से मन्नत कर रहा था कि उसे नीचे उतारा जाए और वो हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। अमीर सैफुद्दीन ने हौलनाक आवाज में बोलना शुरू किया, फिदाई, मेरा पहला सवाल है कि तुम्हें किसने तुर्निता पर हमलावर होने की तरगीब दी थी? फिदाई फौरन बोल पड़ा, सैफुद्दीन, मुझे बिलफोर्ड के हुक्मरान बुरहानुद्दीन ने अमीर को कत्ल करने की तरगीब दी थी। मेरे साथ मेरा एक साथी भी था जो तुर्निताई के हाथों मारा गया। सैफुद्दीन ने दूसरा सवाल किया, बिलफोर्ड के हुक्मरान ने तुम्हें ऐसी तरगीब क्यों दी? फिदाई फिर बोल पड़ा, सैफुद्दीन, शायद आप जानते होंगे कि अमीर तुर्निताई एक लंगड़े राहिब के भेष में दमिश्क से बिलफोर्ड तक सफर किया। दमिश्क में उसने कुछ पादरियों के अलावा दमिश्क के बिशप का काम तमाम किया। फिर बिलफोर्ड में आकर भी उसने वहां के बिशप और चंद पादरियों को मौत के घाट नहीं उतारा, बल्कि उसने बिलफोर्ड के हुक्मरान बुरहानुद्दीन के बेटे को भी मौत के घाट उतार दिया था। बस इसी बिना पर बुरहानुद्दीन ने मुझे तरगीब दी कि मैं अमीर तुर्निताई का काम तमाम कर दूं, इसलिए कि आजकल हमारे हकीम और बहरीन के साहिली नसरानी हुक्मरानों के दरमियान मिस्र के सुल्तान रुकनुद्दीन के खिलाफ ताउन की फिजा है। उस फिदाई के जवाब में तुर्निताई के चेहरे पर पुरसुकून मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। थोड़ी देर तक वो कुछ सोचता रहा, उसके बाद दोबारा उसने पूछा, अमीर से इंतकाम लेने के लिए क्या बिलफोर्ड के हुक्मरान बुरहानुद्दीन ने कोई और कार्रवाई भी की है? फिदाई फौरन बोल पड़ा, हमारे अलावा अमीर सैफुद्दीन खुद बुरहानुद्दीन की बेटी बिरनिस भी हरकत में आ चुकी है। उसने अपने कुछ मुस्लिम जवानों को अपने साथ लिया है और वो किसी भी वक्त मुनासिब मौके जानते हुए अपने साथियों के साथ तुर्निताई पर हमलावर होगी। उस काम का तमाम करते हुए उसे उसके हाथों मरने वाले अपने भाई के इंतकाम लेगी। मजीद है कि ईसाई दुनिया ने कुछ पादरी पाए आजम किलमिंट की तरफ रवाना किए हैं ताकि यूरोपीय हुक्मरानों को इस बात पर आमदा किया जाए कि वो यूरोप से अपने लश्कर फिलिस्तीन की तरफ रवाना कर दे। यहाँ तक कहने के बाद वो फिदाई जब खामोश हुआ तो सैफुद्दीन ने तुर्निताई की तरफ देखा। तुर्निताई, मेरे बेटे, क्या तुम इस फिदाई से कुछ और भी पूछना चाहते हो? जवाब में तुर्निताई ने नफी में सर हिला दिया, जिसके बाद सैफुद्दीन ने फिर अपने उन दोनों लश्करियों को जो अभी तक वहां खड़े हुए थे मखसूस इशारा किया। इशारा पाती हुई दोनों लश्करियों ने फौरन रस्सियां खोलकर उस फिदाई को जमीन पर डाल दिया। फिर उसे उठाकर बाहर ले गए, उसकी गर्दन काट दी और वो वही जमीन में
गड्ढा खोदकर उसे दफन कर दिया। उन सिपाहियों के निकलने के बाद सुल्तान रुकनुद्दीन ने सैफुद्दीन की तरफ देखा और फिर मुखातिब किया, सैफुद्दीन मेरे भाई, कुछ बेहतरीन तेजन किस्म के ऐसे जवान मुकर्रर करो जो हर वक्त तो निताई की हिफाजत पर मामूर है। वैसे तो हम अनकरीब बिलफोर्ड पर हमलावर होंगे और बिलफोर्ड के हुक्मरान बुरालिन का खात्मा करके रहेंगे। उसके बावजूद एहतियात के तौर पर कुछ जवान हर वक्त तो निताई की हिफाजत पर मामूर रहने चाहिए ताकि बुरालिन की बेटी और उसके मुसरे जवान या मजीद फिदाई तो निताई पर हमलावर होकर उसे नुकसान न पहुंचा सके। जवाब में सैफुद्दीन की आवाज़ सुनाई दी, सुल्तान आप बेफिक्र रहे, तो निताई मुझे अपने बेटों की तरह अजीज है। आप देखेंगे कि मैं उसकी हिफाजत का खूब इंतजाम करूंगा। सुल्तान ने इस बार अपने रईस उतबा इब्न नफीस की तरफ देखा और पूछा, इब्न नफीस मेरे अजीज, मेरे भाई, तुम्हारा अब तो निताई के मुतालिक क्या ख्याल है? जवाब में बड़ी अकीदतमंदी से इब्न नफीस ने कहना शुरू किया, सुल्तान जहर मैंने निकाल दिया है, जो मरहम मैंने लगाया बाकी बचने वाले जहर का भी जल्द से जल्द खात्मा करेगा। तो निताई, सुल्तान ने फिर तो निताई की तरफ देखा, कहने लगा, तो निताई अब तुम क्या महसूस कर रहे हो? तो निताई के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, सुल्तान आप मेरे लिए जिस एहतियात और फिक्रमंदी का इजहार कर रहे हैं इसके लिए मैं आपका ममनून और शुक्रगुजार हूँ। सुल्तान फिक्रमंद की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त महसूस कर रहा हूँ। फिर सुल्तान, जहाँ इब्न नफीस जैसा तबीब बैठा हो वहाँ उन फिदाओं के जहर का असर कैसे खतरनाक साबित हो सकता है? सुल्तान आप सैफुद्दीन और हुसामुद्दीन जाग के आराम करें, मेरे पास इब्न नफीस है, जिस किसी शय की जरूरत महसूस हुई तो मैं आपको कहला भेजूंगा। तो निताई के इस जवाब पर रुकनुद्दीन मुतमईन हो गया था। फिर सुल्तान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ सैफुद्दीन और हुसामुद्दीन के साथ वो खीमे से निकलता हुआ कहने लगा, तो निताई थोड़ी देर बाद तुम्हारे और इब्न नफीस के अलावा जो तुम्हारे मेहमान है उनका खाना भी यहाँ पहुँच जाएगा। तुम इस बच्ची का जिसका नाम तुमने अर्जुन बताया है उसके आराम का अगर अलहदा खीमा चाहते हो तो उसका भी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। जवाब में अमीस बिन खलून बोल पड़ा, सुल्तान ऐसे किसी शय की जरूरत नहीं, हम तीनों बाप बेटा और बेटी आज की रात अमीर के खीमे में ही गुजारेंगे, उसके पास बैठेंगे और उसके साथ बातें करते हुए उसका दिल बहलाते रहेंगे। अगले रोज हम तीनों मुतमईन होकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाएंगे। सुल्तान अमीस के जवाब से मुतमईन हो गया था और वो खीमे से निकल गया था। अमूस, सफ्तुना, रुदा और उसका भाई समीर अपनी हवेली के दीवान खाने में बैठे थे कि बाहर से इलियास दीवान खाने में दाखिल हुआ और वो बुझा बुझा, अफसुर्दा और वीरान सा था। उसकी हालत देखते हुए सफ्तुना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। आमूस, रुदा और समीर भी उदास और परेशान हो गए थे। वीरान सी हालत में इलियास आमूस के सामने आकर बैठ गया। रुदा ने फौरन अपने नाना को मुखातिब करते हुए पूछ लिया, नाना क्या बात है, आप उदास, अफसुर्दा और बिखरे बिखरे से हैं, क्या कोई खास वजह है? इलियास ने अपनी रानों पर हाथ मारते हुए कहा, देख रुदा मेरी बेटी, मैं एक बुरी खबर लेकर आया हूँ। काहिरा शहर में अभी अभी ये खबर आई है कि तू निताई पर कुछ फिदाइयों ने हमला कर दिया था। उनमें से एक का तो अमीर ने काम तमाम कर दिया, दूसरे को जिंदा पकड़ लिया गया, लेकिन पकड़े जाने से पहले अपना जहर आलूद खंजर तो निताई की दे मारा था। ये खंजर अमीर की रान में लगा था। एक खबर भी बताया गया था कि अमीर उस वक्त जख्मी हालत में अपने खीमे में है और मिस्र का सबसे बड़ा तबीब इब्न नफीस उसका इलाज कर रहा है। अपने नाना के इस इंकिशाफ पर परी चेहरा रुदा के ख्याल और फिक्र की दुनिया में शहनशाही फैलती दर्द सी हलचल पड़पा हो गई थी। वो बुरी तरह अपने होठ काटते हुए उस खबर की भयानकपन को जब्त कर रही थी। सफ्तुना, इलियास और खुद आमूस भी बड़ी तेजी से बदलते हुए रुदा की इस हालत को बड़े गौर से देख रहे थे। अपनी बेटी की हालत देखते हुए आमूस फौरन बोल पड़ा, बुजुर्ग इलियास, अमीर से अब हमारा एक रिश्ता, एक ताल्लुक और राब्ता है, हम उसे यूं बेबसी की हालत में तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये खबर सुनने के बाद मैंने ये फैसला किया कि अभी थोड़ी देर तक मैं, रुदा और समीर यहाँ से अमीर तुनिता की देखभाल करने के लिए रवाना हो जाएंगे, ताकि उसे यह एहसास हो कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है, उसके चाहने वाले, उसकी देखभाल, उसकी निगाहदाश्त करने वाले मौजूद हैं। आमूस के इन अल्फाज पर जहाँ रुदा की आंखों में चमक और होठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई थी, वहाँ उलियास और सफ्तुना के चेहरे पर भी पसंदगी के आसार नमूदार हुए थे। फिर उलियास बोल पड़ा, आमूस मेरे बेटे, मैं तुम्हारी इस तजवीज़ से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। मेरे ख्याल में तुम रुदा और समीर को लेकर आज ही सुल्तान रुकनुद्दीन की लश्कर की तरफ रवाना हो जाओ। वहाँ तुम अमीर के पास क़याम करो, उसकी देखभाल और निगहदाश्त करो, इसलिए कि उससे अब हमारा राब्ता और एक तरह से रिश्ता है। और वहाँ तुम तीनों को एक अच्छी खबर भी बताना भूल गया, और वो ये कि सूसा नाम की तुम्हारी बस्ती पर सुल्तान के लश्कर ने कब्जा कर लिया है। सुल्तान अपने लश्कर के साथ उन दोनों बिलफोट और सूसा के दरमियान पड़ाव किए हुए है। अब यूं जानो, सूसा नाम की तुम्हारी बस्ती उन दोनों सुल्तान रुकनुद्दीन की अलमदारी में शामिल हो चुकी है। लिहाजा अमीर के पास क़याम के साथ साथ तुम अब बेफिक्र और बेधड़क अपनी हवेली में ही क़याम कर सकते हो। यहाँ तक कहने के बाद उलियास जब खामोश हुआ
तो सफ्तूना अपने शोहर उलियास को मुखातब करते हुए फिर बोल पड़ी, तो आपके कहने का मकसद है कि ये तीनों अब अपनी बस्ती सूसा में ही क़याम करें। उल्लास ने झट जवाब दिया, नहीं हरगिज़ नहीं, मैं इन तीनों को सिर्फ और सिर्फ तुर्निताई की तीमारदारी के लिए भिजवा रहा हूँ, बल्कि मैं तो ये भी मशवरा दूंगा कि आप सिर्फ आमोस और रुदा दोनों बाप बेटी जाए समीर को यहाँ मेरे पास छोड़ जाए। ये दुकान की देखभाल करने लगा है। ये दोनों बाप बेटी भी चंद यौम तक वहाँ क़याम करके वापस आ जाएंगे। अगर ये कुछ दिन मजीद अपने हवेली में क़याम करके अपनी ज़मीन और बागात की देखभाल भी करना चाहे तो इन्हें इसकी भी इजाज़त है, लेकिन सूसा में दोनों बाप बेटे मुस्तकिल रिहाइश नहीं रखेंगे, बल्कि वापस काहिरा आएंगे। देख सफ्तूना, मुझे यकीन है कि अमीर रुदा को अपनाने पर रज़ामंद हो जाएगा, और जिस दिन ऐसा होगा मैं जानूंगा मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान होगा कि मेरी नवासी रुदा तुर्निताई जैसे बेडर जंगजू और बेबाक जवानों के साथ और साथी और रफीक की हयात बन गई है। सफ्तूना, मैं ये बात अपनी नवासी रुदा और अपनी नवासी समीर के सामने करते हुए हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। मेरी अब यही ख्वाहिश है कि मेरी नवासी रुदा तुर्निताई की ज़िंदगी का साथी बने। मेरा दिल कहता है कि रुदा और तुर्निताई एक दूसरे के लिए पैदा हुए हैं और ये ज़रूर एक दूसरे को अपनाने में कामयाब हो जाएंगे। अपने नाना उलियास की इस गुफ्तगू पर रुदा खुशी में समाये नहीं जा रही थी। उसकी खुशियों की कोई इंतहा नहीं थी। उलियास की गुफ्तगू का जवाब देते हुए आमूस बोल पड़ा, मोहतरम और बुजुर्ग उलियास, मैं आपकी तजवीज़ से इत्तेफाक करता हूँ। समीर यहाँ आपके पास ही रहेगा और दुकान की देखभाल करेगा। मैं और रुदा थोड़ी देर तक यहाँ से अमीर तुर्निताई की तरफ जाने के लिए रवाना हो जाएंगे। हम बाप बेटी चंद यौम तक तुर्निताई के पास रहेंगे, फिर कुछ रोज़ अपनी हवेली में गुजारेंगे। बुजुर्ग उलियास, मैं समझता हूँ ये मेरी और मेरे बच्चों की खुशकिस्मती है कि सुल्तान रुकनुद्दीन ने सूसा को अपनी आलमदारी में शामिल कर लिया है। इस तरह मुझे अपने बागात, अपनी ज़मीन की तरफ से किसी तरह का कोई खतरा, खदशा और अंदेशा नहीं रहा। मेरे और मेरे बच्चों की दूसरी बड़ी खुशकिस्मती यह है कि अमीर तुर्निताई से हमारा एक तरह का राब्ता और रिश्ता कायम हो गया है, और मुझे उम्मीद है कि अनकरीब ये रिश्ता एक मुस्तहकम सूरत इख्तियार करेगा। मेरे ख्याल में अब मुझे और रुदा को अपने कोच करने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। उलियास और सफ्तूना दोनों ने आमूस की इस तजवीज़ से इत्तेफाक किया। फिर आमूस को अचानक कुछ याद आ गया और उसने दीवान खाने से उठने से कबल फिर उलियास को मुखातिब करके पूछा, उलियास मेरे मोहतरम, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस कदर मैदान जंग से अमीर तुर्निताई के जख्मी होने की खबर कैसी पहुंची? इस पर उलियास ने मुस्कुराते हुए कहा, आमूस मेरे बेटे, क्या तुम यकीन करोगे कि अमीर तुर्निताई आज ही सूसा की बस्ती के नवाह में जख्मी हुआ है और आज ही उसके जख्मी होने की इत्तला काहिरा पहुंच चुकी है। इस पर आमूस ने हैरत अंगेज अंदाज में उलियास की तरफ देखते हुए पूछा, उलियास मेरे मोहतरम, ये कैसे मुमकिन है? अमीर तुर्निताई आज ही सूसा के नवाह में जख्मी हुआ हो और उसके जख्मी होने की इत्तला आज ही काहिरा पहुंच चुकी हो। उलियास जवाब में फिर बोल पड़ा, आमूस मेरे बेटे, रुकनुद्दीन की खबर रिसानी और डाक जनी का इंतजाम बड़ा उम्दा और बेमिसल है। खबर रिसानी और डाक का इंतजाम दो तरह का है, एक बरी और दूसरा हवाई। बरी डाक के लिए सुल्तान ने अपनी सल्तनत के अंदर जा बजा डाक की चौकियां कायम कर रखी है। ये चौकियां डाक की छोटे मरकजों का काम देती है। डाक की चौकी कायम करने में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि ये किसी आबाद गांव के करीब हो और वहां पानी बइफरात मिलता हो। डाक के हर मरकज में इंसानों और जानवरों के खुर्दो नोश और दूसरी ज़रूरियात का सामान ज़ख़ीरा है, मुनासिब ज़ख़ीरा रहता है और इसकी हिफाजत का भी मुनासिब इंतज़ाम किया गया है। डाक के मुलाजिमीन इन मरकज़ात में निहायत आसाइश के साथ रात गुजारते हैं। हर डाक चौकी में तंदुरुस्त और तेज़ रफ्तार घोड़ों की मुनासिब तादाद भी रहती है। ये घोड़े डाक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए काम में लाए जाते हैं और उनके लिए सुल्तानी निशानी ज़रूर होता है। इन मरकज़ों से डाक तकसीम भी होते हैं और दूसरी जगहों से भेजने के लिए भी ले जाते हैं। डाक चौकियों का अफसर आला अपने यहाँ चांदी की एक बहुत सी तख्तियाँ महफूज रखता है। उन तख्तियों की एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह वद्दीनुल हक लियुज़हरू वद्दीन लिकुल्लि वलौ करहल मुशरिकीन लिखा हुआ होता है, जबकि दूसरी तरफ अल सल्फाफुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कंधा होता है। जब डाक का कोई हर कार्ड लेकर रवाना होता है तो एक तख्ती उसको दी जाती है और वो तख्ती अपने गले में लटका लेता है। जब सरकारी काम से फारिग हो जाता है तो उसे उतार कर जमा कर देता है। डाक के किसी मुलाजिम को ज़रूर पहुंचाना या उसके काम में रुकावट डालना सख्त जुर्म ख्याल किया जाता है। उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी इलाके के नाजिम के सुपुर्द होती है। ये तो डाक का ज़मीनी इंतज़ाम है। जहाँ तक हवाई डाक का ताल्लुक है तो ये सुल्तान के बेहतरीन इंतजामात में से एक है। हवाई डाक सीधा हवाई नामा बर कबूतरों के जरिए से की जाती है। सुल्तान रुकनुद्दीन से पहले शाम और मिस्र के सुल्तान नूरुद्दीन
महमूद जंगी भी नामा बर कबूतरों के जरिए से हवाई डाक का इंतजाम किया करते थे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के अलावा बगदाद का खलीफा नासिरुद्दीन अब्बासी भी नामा बर कबूतरों के जरिए से खबर रसानी और डाक का एक अहतमाम किया करता था। इसके अलावा मिस्र के फातिमी खुलफा डाक भेजने के लिए नामा बर कबूतरों से वसी पैमाने पर काम लिया करते थे। सुल्तान रुकनुद्दीन ने भी सर पर आए सल्तनत होने के बाद नामा बर कबूतरों के महकमे को असर नौ कायम किया। इसकी तोसी और तरक्की के लिए बड़ी सरगर्मी दिखाई। उसने नामा बर कबूतरों का मरकजी बरडाक का मरकज आला के साथ ही किला जबल में कायम किया, जहां उनके रहने के लिए खास किस्म के बुर्ज बनाए और इसके साथ ही उन कबूतरों को सुधाने और उनको गौर और बर्दाश्त के लिए खास इंतजाम किए और कबूतरों से बिलउमूम सरकारी कार्ड की तरसील का काम लिया जाता है। हर कबूतर के उतरने के लिए चौकी मखसूस कर दी गई है। इस सारी तफसील उसने उसे बता दी थी। इलियास जब खामोश हुआ तो आमूस कहने लगा, इलियास मेरे बुजुर्ग, ये तो सुल्तान रुकनुद्दीन की तरफ से पैगाम रसानी का बेहतरीन, इंतहाई उम्दा और आला सरात पर काम है। मेरे ख्याल में अब मुझे और रुदा को उठना चाहिए ताकि यहाँ से कोच करने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। इलियास, सफ्तूना दोनों ने इससे इत्तेफाक किया। फिर सब आमूज और रुदा की तरह तैयारी करने लगे थे। शाम आहिस्ता आहिस्ता ठहरती जाने लगी थी और चांदनी अपने पूरे शबाब में चमक रही थी। ऐसे में तुर्निताई अपने खीमे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके एक तरफ सुल्तान रुकनुद्दीन और सैफुद्दीन और दूसरी जानिब हुसामुद्दीन और शाही तबीब इब्न नफीस बैठे हुए थे। तुर्निताई का दिल बहलाने के लिए इधर उधर की गुफ्तगू हो रही थी कि एक मुहाफिज अंदर आया और बड़ी ताजीम और इरादत मंदी में उसने सुल्तान रुकनुद्दीन को मुखातिब किया। सुल्तान, बाहर एक बूढ़ा और एक लड़की आई है। उनका कहना है कि वो काहिरा से अमीर के जख्मी होने की खबर सुनकर आए हैं और अमीर से मिलना चाहते हैं। इस मुहाफिज के इंकिशाफ पर सुल्तान ने तेज निगाहों से उसकी तरफ देखा। क्या तूने इस आने वाले बूढ़े और उस लड़की को उनके नाम नहीं पूछे? वो फौरन बोल पड़ा, सुल्तान, मैंने उनके नाम पूछे हैं। बूढ़ा अपना नाम आमूज बताता है, जबकि लड़की को अपनी बेटी कहता है और लड़की का नाम रुदा है। वो अमीर तुर्निताई से मिलने आए हैं। दोनों बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे हैं। सुल्तान रुकनुद्दीन के चेहरे पर बड़ी आसूदा सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। अमीर सैफुद्दीन और हुसामुद्दीन भी शायद मामले की तह को जानते थे, लिहाजा उनके लबों पर भी मुस्कुराहट थी, जबकि बिस्तर पर लेटे तुर्निताई के चेहरे और आंखों में रोशनी की किरणें चमक उठी थी। सुल्तान रुकनुद्दीन ने तुर्निताई को मुखातब करके पूछा, तुर्निताई मेरे बेटे, क्या ये आमूज और रुदा वही है जिनका तफसील के साथ तुमने मुझसे, सैफुद्दीन से और हुसामुद्दीन से जिक्र कर चुके हो? और रुदा नाम की लड़की क्या वही है जो तुम्हारी रिफाकत की तमन्ना है? जवाब में खीमे के अंदर तुर्निताई की आवाज़ सुनाई दी, सुल्तान, आपका अंदाज़ा दुरुस्त है। ये रुदा वही लड़की है और आमूज उसका बाप है। मेरे ख्याल में जो डाक कबूतरों के जरिए काहिरा भेजी गई है उसमें चूंकि आपने मेरे जख्मी होने का जिक्र किया था, मेरे ख्याल में आमूज के ससुर इलियास ने कहीं से ये खबर पाली होगी और उसका जिक्र उसने आमूज से किया होगा। लिहाजा ये दोनों बाप बेटी फिक्रमंद होकर इस तरफ आए हैं। सुल्तान, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि असल में सूसा के रहने वाले हैं और यहाँ उनके बागात और ज़मीन और बेहतरीन रिहाइश गाह है। बस बिलफोर्ड के हुक्मरान बुरालून के मजालिम से तंग आकर एक काहिरा चले गए थे। तुर्निताई जब खामोश हुआ तो सुल्तान रुकनुद्दीन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। सुल्तान की तरफ देखते हुए सैफुद्दीन और तबीब इब्न नफीस भी खड़े हो गए। फिर सुल्तान तुर्निताई को मुखातिब करके कहने लगा, तुर्निताई मेरे बेटे, मैं खुद उन दोनों को तुम्हारे खीमे में भेजता हूँ। वो तुमसे बहुत कुछ कहना पसंद करेंगे। बेटे, ऐसा हमदर्द लोग बहुत जो तुम्हारे जख्मी होने की खबर मिलते ही काहिरा से तुम्हारी इयादत के खातिर यहाँ पहुँच गए। फिर सुल्तान ने कुछ सोचा और मुहाफिज को मुखातिब करके कहने लगा, अच्छा, मैं खीमे में ही रुकता हूँ, तुम उन दोनों बाप बेटी को अंदर बुला कर लाओ। मुहाफिज बड़ी तेजी से बाहर निकला। थोड़ी देर बाद उस मुहाफिज के साथ आमूज और परी जमाल रुदा खीमे में दाखिल हुई। तुर्निताई ने देखा रुदा बेचारी दूध मांगते बच्चे जैसी बेचैन हो गई थी। खीमे में सुल्तान रुकनुद्दीन और सैफुद्दीन को देखते हुए आमूज और रुदा दोनों चौंक गए और अपनी गर्दन को झुकाते हुए उन्होंने सुल्तान को ताज़ीम पेश की। इस मौके पर सुल्तान ने बड़ी शफ़क़त में दोनों को मुखातिब किया, आमूज और रुदा दोनों, सुनो, तुम जानते हो कि मैं तुर्निताई को अपने बेटों की मानी समझता हूँ। मैं तुम दोनों बाप बेटी का शुक्रगुजार हूँ कि तुम तुर्निताई के जख्मी होने की इत्तला मिलते ही इस सिमत रवाना हो गए। कहो, तुम्हें खबर कैसे मिली? जवाब में आमूज बिखरी आवाज़ में बोल, सुल्तान, नामा बर कबूतरों के जरिए जो आपकी डाक काहिरा पहुंची उसमें चूंकि तुर्निताई के जख्मी होने की भी खबर थी। इस खबर की इत्तला मेरे ससुर इलियास को हुई और उसने मुझे मुताला किया। बस ये खबर मिल काहिरा से इस सिमत रवाना हो गया। सुल्तान, तुर्निताई के हम बड़े एहसानात हैं हम पर
एक लिहाज से ये मेरे पूरे खानदान का मोहसिन और मुरब्बी है। यकीन जानिए इसके जख्मी होने की खबर सुनते ही हम सब घर के अफराद भी जख्मी और बेचैन हो गए थे। आमूस की इस गुफ्तगू से सुल्तान के चेहरे पर इत्मीनान जाहिर हुआ। फिर सुल्तान ने दोबारा आमूस को मुखातिब किया। आमूस और रुदा, तुम दोनों बाप बेटी मुतमईन रहो। तुर्निताई अब खतरे से बाहर है। इसकी टांग भी बड़ी तेजी से ठीक होती जा रही है। जहर बिल्कुल निकाल दिया गया है। टांग की सूजन भी बड़ी तेजी से कम होती जा रही है और मुझे उम्मीद है कि चंद दिन तक ये चलने फिरने और भागने दौड़ने के काबिल हो जाएगा। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, पर जाने से पहले तुम दोनों से पूछना चाहूंगा, तुम अलहदा खीमे में क़याम करना पसंद करोगी क्या यही तुर्निताई के पास? इस मौके पर आमूस के बजाय रुदा बोल पड़ी। सुल्तान मोहतरम, मैं आपके इंतहा दर्जे के शुक्रगुजार हूँ कि आप पर मुझ पर इत्मीनान किया जाए। अमीर के खिमे में ही क़याम करूँ, उनकी देखभाल करूँ। सुल्तान मोहतरम, शायद आप जानते होंगे मेरे बाप और नाना मुझे अपने तौर पर अमीर तुर्निताई से मंसूब कर चुके हैं। इस मौके पर सुल्तान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। रुदा, मेरी बेटी, तुम्हारा कहना दुरुस्त है और जो बातें तुमने कही ये सारी बातें मुझे तफसील के साथ तुर्निताई पहले ही बता चुका है। तुम्हें तुर्निताई के खिमे में रहने और उसकी देखभाल और निगहदाश्त करने की इजाज़त है। महल के शाही तबीब इब्न नफीस ये सामने खड़े हैं। ये तुम्हें बता देंगे कि रात के वक्त कौन कौन सी दवाई तुर्निताई को पिलानी है। मेरे ख्याल में तुम्हारी मौजूदगी में तुर्निताई पहले की निस्बत ज़्यादा तेज़ी के साथ सेहतयाब होगा। इस मौके पर आमूस बोल पड़ा। सुल्तान, क्या ऐसा मुमकिन है मेरे लिए अलहदा क़याम का इंतज़ाम कर दिया जाए? सुल्तान ने कहा, क्यों, तुम्हारे लिए अलहदा खेमे का इंतज़ाम किया जाएगा। थोड़ी देर तक तुम दोनों बाप बेटी तुर्निताई के पास रहो। तुम दोनों का खाना भी तुर्निताई के साथ पहुंच जाएगा। इसके बाद तुर्निताई के मुहाफिज तुम्हें उस खेमे में छोड़ाएंगे जहां तुमने क़याम करना है। फिर सुल्तान ने तबीब इब्न नफीस की तरफ देखा। इब्न नफीस, ये रुदा हमारी बेटी है। इसे जो दवाएं तुर्निताई ने रात के वक्त इस्तेमाल करनी है इनकी तफसील बता दो। इब्न नफीस मिट्टी का एक बर्तन उठाए रुदा के पास आया। उस बर्तन के अंदर 3-4 किस्म की ग़िज़ाएं लिपटी हुई दवाइयाँ थी जिन पर मुख्तलिफ किस्म के निशानात थे। इब्न नफीस ने तफसील के साथ रुदा को समझा दिया कि कौन सी दवाई किस वक्त तुर्निताई को देनी है। दवाओं का इस्तेमाल समझाने के बाद रुदा ने मिट्टी का एक बर्तन संभाल लिया। उसके बाद सुल्तान रुकनुद्दीन की आवाज़ एक बार फिर खीमे में सुनाई दी। उन्होंने उस मुस्लिम जवान को मुखातिब किया जो आमूस और रुदा को अंदर लेकर आया था। दोनों मेहमानों के घोड़ों को उस छप्पर तले बांधो जहाँ तुर्निताई का घोड़ा बंधा है और घोड़ों की ज़ीनों के साथ खर्चीने या ज़रूरत का जो दूसरा सामान है वो उतार कर खीमे के अंदर लाओ। सुल्तान का यह हुक्म सुनते हुए मुहाफिज बड़ी तेज़ी से बाहर निकल गया था। इसके साथ ही खुद सुल्तान भी सैफुद्दीन, हुस्सामुद्दीन और तबीब इब्न नफीस के साथ तुर्निताई के खीमे से निकल चुके थे। थोड़ी ही देर बाद वो मुस्लिम जवान दोनों घोड़ों की चरमी खिरचें और दूसरा सामान खीमे में लाया और एक कोने में वो सामान रख दिया। फिर आमूस को उसने मुखातिब करके कहा, मेरे मोहतरम, मैं आप दोनों के घोड़ों को छप्पर तले बांध कर उनके दाने चारे का इंतजाम करके आया हूँ और मेरे कुछ साथी खीमे से बाहर ही पहरा देते हैं। आपको किसी चीज़ की जरूरत महसूस करें तो मुझे बुला सकते हैं। इसके साथ वो मुस्लिम जवान खीमे से निकल गया था। उस मुस्लिम जवान के जाने के बाद आमूस और रुदा दोनों बाप बेटी तुर्निताई के करीब बैठ गए। फिर आमूस ने अपना हाथ बड़ी शफकत, बड़े प्यार में तुर्निताई की पेशानी पर रखा और इंतहा दर्जे की हमदर्दी में डूबी आवाज़ उसने पूछा, तुर्निताई मेरे बेटे, अब तुम कैसे हो? तुम्हारी टांग में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं? और ये कि तुम्हारी टांग का जख्म अब कैसा है? कबल इसके कि तुर्निताई आमूस की इस गुफ्तगू का जवाब देता, रुदा अपनी जगह से उठी, तुर्निताई की टांग के करीब आई। फिर तुर्निताई की आंखों में आंखें डालते हुए उसने अपनी हलावत और मिठास भरी आवाज़ में पूछा, क्या मैं आपका जख्म देख सकती हूँ? तुर्निताई ने जब इस बात में सर हिला दिया तब लिबास हटाकर रुदा ने देखा रान पर पट्टी बंधी हुई थी और सूजन पहले से काफ़ी कम थी। कबल इसके कि रुदा अपने ख्यालात का इजहार करती, तुर्निताई पहले ही बोल पड़ा, अब तो पहले की निस्बत काफ़ी फ़र्क है। पहले मेरी टांग काफ़ी सूज गई थी। इब्न नफीस ने मेरा कोई ऐसा नायाब किस्म का इलाज किया है कि दर्द में कमी होने के साथ साथ सूजन भी कम जाती रही है और ज़ख्म भी बड़ी तेज़ी से कम होता जा रहा है। अब मैं ज़ख्म में किसी किस्म की टेस्ट और दर्द महसूस नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि मैं बिल्कुल चंद दिन तक ठीक हो जाऊंगा। आमूस के बजाय रुदा ने हलावत भरी आवाज़ में तुर्निताई को मुखातिब किया, आपको हमारा शुक्रगुजार और ममनून होने की ज़रूरत नहीं है। उसने इसलिए कहा था इसलिए कि तुर्निताई ने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया था जिसके लिए वो यहाँ तक सफ़र किए हुए थे। फिर रुदा बोल पड़ी, हमने तो आपके लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया, बस काहिरा से यहाँ तक सफ़र ही किया है और वो भी आपकी इयादत के लिए। आपने जो कुछ मेरे भाई को बिलफोर्ड के हुक्मरान बुरालून के मुहाफिजों के दरमियान से निकाल कर सूसा से काहिरा बहिफाजत पहुँचाया, वो एक ऐसा एहसान है जिसे किसी भी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। जब आप हम पर ऐसी मेहरबानी, ऐसे एहसान कर चुके हैं तो फिर आपको सिर्फ हमारे काहिरा से यहाँ तक सफ़र करने पर एहसानमंद होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कहने के बाद रुदा लम्हे भर के लिए रुकी थी। थोड़ी देर तक मीठी मीठी निगाहों से वो अमीर की तरफ देखती रही। फिर सिलसिला कलाम
उसने दोबारा शुरू किया। नानी और नाना और नानी ने दोनों आपके जख्मी होने का सुनकर इंतहा दर्जे के परेशान थे। समीर भी आपसे मुतालिक पूछ रहा था। रुदा की इस गुफ्तगू से तुर्निताई के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर उसकी धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। रुदा, तुम्हारे नाना और नानी तुम लोगों से मुलाकात से कभी भी मुझ पर बड़े मेहरबान और शफीक थे, और मेरी मुलाकात उनसे उन दोनों से ही है जब मैं मिस्र की हुकूमत के लश्करों का सालार अव्वल मुकर्रर किया गया था। तुर्निताई की इस गुफ्तगू का जवाब देने के बजाय रुदा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और वहां चली गई जहां मुहाफिज ने उनके घोड़ों की खर्चीने और दूसरा सामान रखा था। रुदा के जाने के बाद आमूस ने तुर्निताई को मुखातिब किया। तुर्निताई, मेरे बेटे, क्या तुम किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस करते हो? अगर तुम्हें रकम या किसी और शय की ज़रूरत हो तो कहो, मैं हाजिर हूँ। इस पर शुक्रगुजार अंदाज में तुर्निताई ने आमूस की तरफ देखा। आमूस, मेरे मोहतरम, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जहाँ तक रकम का ताल्लुक है तो अगर आपको रकम की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। तुर्निताई की इस गुफ्तगू का जवाब आमूस देने ही लगा था कि रुदा लौट आई। उसके हाथों में कुछ कपड़े थे और उसने तुर्निताई के सामने डालते हुए फिर अपनी मीठी और शहद भरी आवाज़ में कहा, मैंने आपके लिए कुछ कपड़े बनवाए हैं, ये मुझे कल सुबह पहन कर दिखाइएगा। अगर इनमें किसी किस्म की कमी बेशी करनी हुई तो मैं यहाँ आपके पास क़याम के दौरान दुरुस्त कर दूंगी। तुर्निताई उन कपड़ों को उलट पलट कर देखने लगा जो रुदा ने उसके सामने रखे थे। फिर गौर से उसने रुदा की तरफ देखा। रुदा, तुम्हें जहमत करने की क्या जरूरत थी? मैं समझता हूँ बहुत कीमती कपड़े हैं जो तुम मेरे लिए बना कर लाई हो। तुम जानती हो मैं सादा, बिल्कुल सस्ते कपड़े पहनने वाला इंसान हूँ और ये आदत मेरी शुरू से है। रुदा ने तुर्निताई की इस गुफ्तगू का कोई जवाब न दिया। उसने देखा खीमे के अंदर मिट्टी की अंगीठी में जो आग जल रही थी वो निधम पड़ती जा रही थी। लिहाजा करीब पड़ी हुई लकड़ियों में से कुछ उसने उठाई और आग के अंदर डाल दी। आग थोड़ी देर तक फिर भड़क उठी थी। ऐन उसी वक्त दो मुस्लिम जवान खीमे में दाखिल हुए। वो खाने के बर्तन उठाए हुए थे। तुर्निताई ने उन दोनों को हाथ के इशारे से एक तरफ बर्तन रखने के लिए कहा और बर्तन रखकर वो बाहर निकल गई थी। तुर्निताई ने आमूस और रुदा की तरफ देखते हुए कहा, खाना आ गया है, मेरे ख्याल में पहले खाना खाएं, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। इसके साथ ही तुर्निताई ने जब उठना चाहा तो रुदा फौरन आगे बढ़ी और तुर्निताई की छाती पर हाथ रखते हुए कहा, आप लेटे रहे, मैं खाना खिलाती हूँ। इस पर तुर्निताई मुस्कुराते हुए कहने लगा, रुदा, मैं ऐसा भी कोई जख्मी नहीं हूँ कि बैठकर खाना तक ना खा सकूं। मुझे उम्मीद है कि मैं 1-2 दिन तक चलना शुरू कर दूंगा। मैं अब इस बिस्तर से तकरीबन तंग पड़ता जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुर्निताई उठकर बैठ गया। तीनों मिलकर खाने लगे थे। खाने के बाद तुर्निताई ने जब मुहाफिज को आवाज़ दी तो 2 मुहाफिज तकरीबन भागते हुए अंदर आए। एक मुहाफिज खाली बर्तन उठाकर बाहर चला गया। दूसरा मुहाफिज ने तुर्निताई की तरफ देखा और फिर बोला, अमीर, आपके खीमे के बाएं जानिब मेहमानों के क़याम के लिए नया खीमा नस्ब किया जा चुका है और उसमें आग भी रोशन करके उसे गर्म कर दिया गया है। खीमे में ज़रूरत की शय भी मुहैया कर दी गई है। वो मुहाफिज यही तक कहने पाया था कि आमूस अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। तुर्निताई, मेरे बेटे, मैं तो थका हुआ हूँ, मैं उस खीमे में जाकर आराम करूँगा। रुदा बहरहाल तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारी देखभाल करेगी, वक्त पे तुम्हें दवाई पिलाएगी और मेरे ख्याल में तुमसे गुफ्तगू करके तुम्हारा दिल भी बहलाती रहेगी। इसके साथ ही आमूस खीमे के कोने में पड़े हुए अपने सामान की तरफ गया। उसमें से उसने अपना एक फालतू लिबास लिया। फिर मुहाफिज के देखा और मेरे अजीज़, मुझे उस खीमे की तरफ ले जा, उसमें मैं अकेला ही क़याम करूँगा। ये मेरी बेटी है, ये अमीर के पास ही रहेगी, इसकी देखभाल करेगी और वक्त पे इसे दवाई पिलाएगी। उस मुहाफिज ने अपनी गर्दन इस बात में खम कर दी। फिर वो आमूस को लेकर उस खीमे से चला गया था। अपने बाप के जाने के बाद रुदा तुर्निताई की सिरहाने बैठ गई। थोड़ी देर तक वो अपने नरम गुजार और मरमरी उंगलियां तुर्निताई के बालों में फिरती रही। फिर खीमे में उसकी शहीद और शीरनी आवाज़ सुनाई दी, तुर्निताई, मैं चाहती हूँ कल सुबह ही सुबह आपको इस खीमे से हम सूसा अपनी हवेली ले जाएं। मैं समझती हूँ वहाँ आपका बेहतरीन देखभाल हो सकेगा और आप वहाँ जब तक जख्मी है पुरसुकून रह सकेंगे। इस पर तुर्निताई ने मुस्कुराकर रुदा की तरफ देखा। रुदा, इसकी जरूरत नहीं है। अव्वल तो ये कि मैं जख्मी क्या जिंदगी बसर करने का आदी हूँ। दुआ में कि यहाँ मिस्र का सबसे आला और बेमिसल तबीब इब्न नफीस मौजूद है। वो दिन रात में कई बार आकर मेरी निगहदाश्त करता है। लिहाजा मैं समझता हूँ उसकी ज़ेरे निगरानी में बहुत जल्द चलने फिरने के काबिल हो जाऊँगा। अगर मैं सूसा में तुम्हारी हवेली में मुंतकिल हो गया तो इब्न नफीस के लिए वहाँ आना जाना बड़ा तकल्लुफ़दा होगा। मैं यहाँ ऐसा नहीं चाहता। रुदा, अगर तुम खीमे की ज़िंदगी पसंद नहीं करती तो कल सुबह ही सुबह तुम्हें और तुम्हारे बाप को सूसा की तरफ बहिफाजत पहुँचा दूंगा, जहाँ तुम दोनों बाप बेटे अपनी हवेली में क़याम कर सकते हो। इसलिए कि सूसा अब हमारी अलमदारी में शामिल हो चुका है। अब वहाँ तुम लोगों को बिलफोर्ड के हुक्मरान बुरालून की तरफ से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। तो निताई की उस गुफ्तगू का जवाब देते हुए रुदा झट बोल पड़ी, आप मेरी गुफ्तगू का गलत मतलब ले रहे हैं। मैं खीमे की ज़िंदगी से ना ही नाला हूँ ना ही यहाँ तकलीफ महसूस करती हूँ। मैं तो यहाँ तक कह सकती हूँ कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी खीमे में आपके साथ बखुशी गुजार सकती हूँ। रुदा के इन अल्फाज पर अमीर कुछ सोचता रहा। फिर उसने रुदा की तरफ देखते हुए पूछा, रुदा, अगर तुम महसूस ना करो
तो मैं कुछ कहूँ? रोदा ने फिर प्यार भरी आवाज में कहा। आपकी बातों को क्यों महसूस करूं? आप जो चाहे कहें, आपकी हर बात मेरी खुशी में बेपनाह इजाफा करेगी। तो निताई फिर बोल पड़ा। रोदा, मेरे जैसे जंगजू की जिंदगी ख्वाबों के जजीरे की तरह है। रोदा, मुजाहिद की जिंदगी भी अजीब जिंदगी होती है। बज़ाहिर वो गुलिस्तान महकते फूलों के सहरा जैसा है, लेकिन उसकी शमा कभी भी बुझ सकती है। तो निताई इससे आगे कुछ ना कह सका, इसलिए कि रोदा ने तड़प कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बेचारी रोती हुई आवाज में कहने लगी, खुदा के लिए ऐसी गुफ्तगू ना कीजिए, वरना मैं यही बैठे बैठे बेमौत मर जाऊंगी। तो निताई ने महसूस किया कि वो रोदा के हाथ गुजारपन की नरमी और कुंवारेपन की खुशबू में जुल्फ की खुशबू बरस रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी नरमी के साथ रोदा ने अपना हाथ तो निताई के मुंह से हटा लिया। उसके बाद उसकी मीठी आवाज सुनाई दी, अमीर, जो कुछ आपने कहा है वो मैं समझ गई हूँ, और जो कुछ आप कहना चाहते हैं उसका भी मैंने अंदाजा लगा लिया है। आप मुझे एक मुजाहिद जंगजू की जिंदगी की असलियत वाज़ेह करके आखिर में ये कहना चाहते हैं कि मैं आपकी तलब, आपकी मांग ना करूं। अमीर, जो कुछ आपने कहा है वो मैंने सुन लिया है, अब जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ वो भी सुनिए। अमीर, आप मेरे लिए मोहब्बत और चाहत की किंदील है, आप मेरी अजमत और तौकीर का रास्ता है। मैं आपके बगैर एक लम्हा भी नहीं जी सकती, इसलिए कि अब आप ही मेरी तकदीर का धारा है, मेरी तन की मांग है। यहाँ तक कहने के बाद रोदा खामोश हो गई थी, इसलिए कि इन अल्फाज पर बिस्तर पर लेटे लेटे अमीर थोड़ी देर तक बड़ी आसूदगी, बड़ी चाहत और इत्मीनान में मुस्कुराता रहा। फिर उसने रोदा की तरफ देखा। रोदा, अगर इन सारे सख्त हालात और वाक़यात को जानने के बावजूद तू मेरी रिफाकत, मेरी चाहत की तलबगार होती है, तो फिर सुन, मैं तेरी चाहत, तेरी मोहब्बत को ठुकराऊंगा नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अनकरीब मैं तुम्हें तुम्हारे नाना और तुम्हारे बाप से अपने लिए मांग लूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपना साथी बनाने के लिए अपने हवेली में ले जाऊंगा। इस रोज ऐसा हो, यूं जानो वो दिन मेरी जिंदगी का बेहतरीन और इंतहाई कीमती दिन होगा।